Hello guys, welcome to iExamB and I welcome you all to the part 2 of our RBI 300 important question series for your upcoming RBI Grade B 2024 examination. तो इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी आपके लिए दे दिया है और आपको एक बोनस वीडियो भी मिला था जिसमें वी हैव डिस्कस important questions based on union budget and economic survey. And in this part 2 again we'll be continuing our series with QRE questions first, then some general awareness questions. The quote for the today is start where you are, use what you have and do what you can. Do not wait for the right time. ठीक है? There is no such thing as a right time. जो भी है आपके पास अभी जितना भी नॉलेज है आपके पास, you just need to start. You just need to use those things. इससे क्या होगा? You will have an idea कि भाई आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो and what all you need to have to complete this particular journey of yours. Okay? So you will have an idea on that. So start where you are. जहाँ पे भी जितना भी पढ़ाई किए हो, don't think कि for this exam I'll need expertise in these topics, these subjects. नहीं, you just need to start. Then only you see if you are an expert or not, or what you need to do to be an expert in that particular topic. So with this quote, we'll start our session today. So here is the first question of quants. Again, if your basics are clear, then you should not have any problem solving this question. A can do a piece of work in 4 hours. B and C both can do the piece of work in 3 hours. A and C can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? Here are your options. I would suggest कि you pause the video and try to answer it. आप इसे solve करो, then we'll discuss. Very basic. इस पे कोई issue नहीं होना चाहिए as far as I guess. Okay. We'll start the solution now. I hope आपने try कर लिया. So A can do it in 4 hours. मतलब 1/4 फोर्थ ऑफ द वर्क हो जाएगा 1 आवर में, राइट? सो बी का क्या है? बी प्लस सी का दिया गया है इन 3 आवर्स, मतलब 1/3 वर्क हो जाता है. एंड ए प्लस सी दे कैन डू इट इन 2 आवर्स, मतलब 1.1/2 में हो जाता है. देन व्हाट यू नीड टू डू इज, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, राइट? दिस इज 12, राइट? 12 हो गया, मतलब तो दिस शुड कम एट 3, then it should come at 4, now it should come at 6. What is this? तो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क को हम 12 ले लिए. द टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर हम 12 लेते हैं तो A should take 3 and B plus C both should take 4 and A plus C both should take 6. तो अभी हमें क्या है? वी हैव द A's फिगर. A का फिगर है तो A plus C तो निकाल ही देंगे. If it is 3 then C should be, that is 6 minus 3, it is 3. And B is 1, C is 3, तो B को यहाँ पे डाल दो. तो यहाँ पे आपको B कितना मिल गया? 1. B is 1. तो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क क्या था हमारे पास? 12. तो इन 1 आवर में B कितना काम कर पा रहा है? इट इज 1 यूनिट ऑफ वर्क. टोटल यूनिट कितना है? 12. तो हमें B का निकालना है, तो B शुड बी 12 आवर्स. ओके, तो 12 यूनिट्स ऑफ वर्क करने के लिए तो इट शुड नीड 12 hours. I hope it is clear now. So this is how you need to approach this particular question, and with this particular concept, ये approach के साथ you can answer these kind of questions. तो इसी concept पे आपको questions मिलते हैं exam में. तो I hope it is clear now. Coming to the next question, in a certain code language, computer is written R, F, U, V, Q, and P, C. How will medicine be written in that code language? तो अभी pause the video and answer. तो we'll start the solution now. इसमें देखो आपको there are 5 or 6 types of codes you will have to check. आपको ट्रायल एंड एरर करना होता है. तो इसमें हमें क्या चेक करना है? जैसे कि +1 +2 वाला सीन बन रहा है क्या, या -1 -2 वाला सीन बन रहा है क्या? नहीं तो एक रिवर्स वाला सिचुएशन रहता है. तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं सी हैज बीन ट्रांसफर्ड. तो यहाँ जैसे कि ये है कंप्यूटर, राइट? तो सी देखो इसमें कहाँ आ गया है? एंड में आ गया है. आर इधर आ गया, मतलब द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर हैज बीन रिवर्स्ड, राइट? देन क्या है यहाँ पे? ई कम्स हियर, +1 होके यहाँ आ गया.
T +1 होके यहाँ आ गया, देन U +1 होके यहाँ आ गया, देन आपका P +1 होके यहाँ आ गया, M यहाँ पे आ गया, N O आ गया आपका P। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो दिस विल बी रिवर्स्ड, बाकी जो है ये आपका इधर आ जाता है +1 होके, हर जगह +1 होके आ जाता है। तो इट्स सेम लॉजिक शुड बी अप्लाइड हियर, नो M E ये आपका रिवर्स हो जाएंगे। तो यू कैन सी द आंसर हियर, इट इज D, M and E हैज बीन रिवर्स्ड। तो इसी कॉन्सेप्ट में ओनली दीज टू ऑप्शंस आर लेफ्ट, बाकी इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन यू कैन सी N का O +1 हो रहा है, I का J, देन C का D, देन I का J। सो हियर ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, दिस वुड बी द आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। देन अगेन ABCD1, इसमें आपको कौन सा पार्ट में दिस वुड बी अ ग्रामेटिकल एरर, यू नीड टू फाइंड दैट ग्रामेटिकल एरर हियर। द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन में कोई एरर नहीं होगा। द कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी हैज been able to sustain imports from basic necessities even as the socialist government has unleashed a crackdown on an angry opposition activist. So you need to find out. Okay, pause the video and answer. तो यहाँ पे you can see has been unable to sustain imports from basic necessities नहीं होता है, right? You import things, that is you import of basic necessities, and has unleashed होता है, right? Has unleashed तो नहीं होता है। then the answers would be B and C, right? B and C। तो ये था क्यूआरई के क्वेश्चंस। नाउ विल गो टू आवर GA and some schemes questions also we'll see. What is the investment limit for foreign portfolio investors in the government securities as announced by the RBI for the fiscal year 2024-25? तो आपको क्या पूछा गया है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो है, तो आरबीआई उनका क्या करता है, एक लिमिट सेट करता है टू दिस मेनी परसेंटेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका कंट्रोल मतलब कोई फॉरेन प्लेयर्स के हाथ में ना जाए। फॉर दैट रीजन दिस लिमिटेशन हैज बीन सेट। So for this particular year, the current financial year, the limit is, it is 6%. Okay, 6%. So very important. तो whenever RBI comes up with a rules regulation या ऐसा कुछ भी RBI अपनी तरफ से लाता है, that becomes very important for our exam. Okay. Next question: Which financial measure has Zimbabwe introduced to stabilize its economy? इनमें से कौन सी फिजिकल मेजर, फिनेंशियल मेजर को जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने लिया है, इंट्रोड्यूस किया है टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी? आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे हैज बीन गोइंग थ्रू द वर्स्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, वर्स्ट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन था कुछ साल पहले, हाइपर इन्फ्लेशन था, रातों रात उनके प्राइसेस डबल ट्रिपल होते थे वहाँ पे चीजें। तो आपको पता होगा कि जो जिम्बाब्वे का क्रिकेट टीम था, फॉर सम इयर्स they could not participate in any international matches as well for that reason, क्योंकि उनकी कंट्री में हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत न्यूज में आया था कि दिस इज अ फुल सर्कल। वी स्टार्टेड विद अ गोल्ड बेकिंग ऑफ करेंसी, नाउ अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स अगेन हमने क्या किया, गोल्ड बैक्ड करेंसी पे आ गया। ठीक है, सो इट इज नोन एज जिम गोल्ड, यू नीड टू रिमेंबर GIG, जिम गोल्ड, टू टैकल इन्फ्लेशन, stabilize the country's economy by linking it to tangible assets. Then the next question: Which Maharatna central public sector enterprise received RBI's note to set up subsidiary in the GIFT City? GIFT City जो है अपना गांधीनगर में। This is the only IFSC we have and more to come. Obviously आगे आगे जाके बहुत सारे IFSCs और ऐड होंगे। Now we have GIFT City गांधीनगर। तो आरबीआई ने अप्रूव किया है, इनमें से कौन से सीपीएससी का सब्सिडियरी गिफ्ट सिटी में ओपन किया जाएगा? द आंसर इज REC लिमिटेड। ओके, सी REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड हैज रिसीव्ड NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप अ होली ओन्ड सब्सिडियरी इन द गिफ्ट सिटी गुजरात। ओके, तो REC लिमिटेड क्या है? दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, प्लीज रिमेंबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, बट इट इज रजिस्टर्ड एज अ NBFC विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कैटेगरी होता है, एनबीएफसी के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, एंड इट वाज आल्सो आस्क्ड इन द फेज 2 एग्जामिनेशन कि एनबीएफसी के बारे में लिखो, कितने कैटेगरीज होते हैं वो भी लिखना है आपको, इसका पर्पज क्या है, एंड व्हाई दीज वर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन वी हैव बैंक्स,
ऐसे करके शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं आपको। तो ये जब पहली बार आरबीआई जब ने डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस किए थे, दे आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज शॉर्ट नोट्स। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का कैटेगरी है, और ऑन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, this REC Limited has been registered with Reserve Bank of India, ठीक है, and this comes under Ministry of Power। तो इन्हीं को अप्रूव किया गया है कि they will open a subsidiary in the GIFT City। Next question on a scheme under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, what is the minimum population threshold for villages to be connected in hilly areas? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपको क्या नाम से ही पता लग रहा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल रोड्स, ठीक है। तो जो गांव में, विलेजेस में जो रोड्स होते हैं, जिसे हम ऑल वेदर रोड्स बोलते हैं, राइट। आप कभी गांव विजिट किए होगे तो आपको पता होगा ऑल वेदर रोड्स क्या होते हैं, जो कॉन्क्रीट रोड्स होते हैं। तो दैट विल बी वायबल फॉर एनी सीजन। तो ये कनेक्शन रोड से कनेक्ट करना गांव को, तो जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे कनेक्ट होता है, जो रूरल हार्ट्स होते हैं तो वहां पे भी कनेक्ट होता है। फॉर दैट पर्पज दिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज इंट्रोड्यूस एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल स्कीम। तो इसमें पूछा गया है मिनिमम पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड, भाई इतने लोग ये पर्टिकुलर विलेज में रह रहे होंगे तभी जाके हम यहाँ पे रोड बनाएंगे। ऐसे नहीं कि आप 5 लोग मिलके, आप कोई गांव में है, कोई हिली एरिया में बहुत कम लोग हैं, तो दैट एरिया विल नॉट बी कवर्ड अंडर द ग्राम सड़क योजना। द थ्रेशोल्ड लिमिट इज, it is 250, okay। In hilly, desert and tribal areas, GSI targets villages with a population of 250 or more to be connected all weather roads, ठीक है। तो minimum is 250। The next question, which literally works from India have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? Very important। तो IBPS का favorite होता है whenever something is included in UNESCO's any kind of registry, that becomes very important for your exam, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ये वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में ऐड हुआ है? यस, इट इज रामचरितमानस एंड पंचतंत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हो रामचरितमानस, इट इज डी द आंसर। रामचरितमानस एंड पंचतंत्र along with Sardyaloka Lokana have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register। तो here is a question for you, I'll show at the end as well, कि भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। The next question, where did the 7th edition of India France joint military exercise Shakti commence? तो आपको क्या पूछा जा रहा है, 7th edition of India France joint military exercise Shakti ये कहाँ पे हुआ? Yes, the answer is Umroi। You can see here Umroi। तो ये कहाँ पे है? मेघालय में है। तो whenever we are studying a military exercise, there are 3-4 things we need to check। क्या है भाई? पहले तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड कौन कौन से कंट्रीज के फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज कौन कौन से फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब ऑल द फोर्सेस विल बी इंक्लूडेड। कुछ कुछ होते हैं कि भाई मरीन एक्सरसाइज हो गया, कुछ कुछ एयर फोर्स एक्सरसाइज, और कुछ कुछ स्पेशली आर्मी के एक्सरसाइज होते हैं। तो you need to remember the force as well। then comes the addition। एडिशन कौन सा है, देन एट लास्ट कि भाई लोकेशन कहाँ पे हुआ। तो दीज आर 5 थिंग्स यू नीड टू चेक व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम क्या है एक्सरसाइज का, कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे द नेम इज शक्ति, कंट्रीज आर इंडिया एंड फ्रांस, फोर्सेस जॉइंट मिलिट्री, तो जॉइंट मिलिट्री में ऑल द फोर्सेस विल बी देयर। एडिशन, it is there in the question 7th edition, and location is Umroi, okay। so this is how you need to study the military exercises। तो यही 5 पॉइंट पे आप नोट्स बनाओ, whenever you are making notes यही 5 पॉइंट्स को आप लिखो, बाकी के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं that you can skip। The last question of the session, with which company did the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship signed an MOU for conducting 2 pilot projects under the Drone Didi Yojana? This is very important। Drone Didi Yojana has been there in the news, and Prime Minister शायद उनके जब भी कहीं पे वो स्पीच देते हैं, बहुत बार, वो 5-6 बार तो इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शंस के बाद वो इस चीज को मेंशन किए हैं, ड्रोन दीदी योजना। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द आंसर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिनिस्ट्री क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम ड्रोन दीदी योजना, तो इन्होंने महिंद्रा के साथ एमओयू साइन किया। क्या इससे क्या होगा, दे विल, द फर्स्ट थिंग इज दे विल ट्रेन द वुमेन कि भाई ये ड्रोन को आप कैसे यूज करोगे। ड्रोन दीदी इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, कि भाई वी नीड टू
train the women, utilize the women power using drones for various purposes. वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस से हो सकता है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए सिखाया जाता है. तो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एमओयू किया गया है. तो आई सजेस्ट कि यू रीड दिस पर्टिकुलर स्कीम इन डिटेल. आगे जाके हम स्कीम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन विल सी ये स्कीम को बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे. एंड दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एज वेल. चाहे फेज 1 में इतना डिटेल में जाके पूछते नहीं है, लेकिन फॉर फेज 2 दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द आंसर हियर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. सो हियर इज द क्वेश्चन. आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर जो है, यू नीड टू पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को. ओके, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को कहाँ पे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इससे कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला है, एंड इससे कुछ कॉन्फिडेंस भी आपका ग्रो हुआ है. एंड कीप practicing the QRE part, and keep doing MCQs on GA. That is the only way out to clear the phase 1 of this examination. तो अभी आपको पता होगा कि the level of the questions that are coming in the QRE section is really high. तो इस हिसाब से your practice and आपका जो conceptual clarity है वो बहुत solid होना चाहिए. तो I hope you are doing that and you are on the right track. Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Prepare 50% faster with iExam. This is Amit signing off.